Hello students, I hope you are well. Dear students, due to COVID-19 this year CBC have reduced your mathematics syllabus also, and the which concept or chapter is deleted by CBSE mathematics. Now we will discuss about the deleted concept. Now in mathematics our first unit is relation and function. Our first unit is relation and function, in which we have two chapter. First is relation and function and second is inverse trigonometry function. Inverse trigonometry function. Now in chapter first, relation and function, deleted part is composite function and inverse of a function. Composite function and a inverse of a function. It means CBSE have deleted two exercise. Means two exercise from chapter 1. So we have only remaining part is exercise 1.1, 1.2. Okay, means only types of relation, in which identity, reflexive, symmetric, transitive, and you can say equivalence of relation. And the composite of function means FOG, GOF, ये पार्ट आपका डिलीट हो चुका है. And inverse of a function also. Inverse means F inverse X, G inverse X, such type have deleted. Because in NCERT only 5 exercise, in which binary operation have deleted last year. Now 4 exercise, in 4 one is composition, another is inverse also. Means from chapter first CBSE have deleted composition, means FOG, GOF, inverse of the function and binary operation. The left part is only equivalence relation and types of relation. If we will discuss about element, I think then only 1 point and 1.2 in element, 2 exercise. Or in NCERT maybe 1 exercise, in which it is combined for equivalence relation and types of relation. You can say we have only remaining part about relation. Deleted part is composition, inverse and binary operation. Now in chapter second, graph. तो what is graph? तो ग्राफ मोस्टली कभी आया नहीं है बोर्ड में अभी तक. सो ये डिलीटेड पार्ट ये ग्राफ में हम ग्राफ बनाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ यूज करते हैं, उसमें ग्राफ को डिस्कस करते हैं. क्लियर? Now, in elementary property of the trigonometry function, elementary properties of trigonometry function. In elementary property, we have some properties: sine inverse into sine x, that is x; cos inverse into cos x, that is x. Maybe deleted part is the proof of properties. Proof of properties. Now, in second unit algebra of first chapter matrices. तो इन matrices first concept related is non-zero matrix, product is zero. It means इसमें 1 or 2 example ही थे आपके पास बुक में. I give the example of 2 matrices that both matrices are non-zero but their product is zero. तो इसका कोई काफ़ी यूज़ नहीं है. 1 or 2 example है, you can make, आप बना सकते हैं. अभी डिलीट हो गया तो इसका रिक्वायरमेंट नहीं है. इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय यूजिंग ऑपरेशन. हाँ यस, ये 1 एक्सरसाइज था आपका 3.4. इसमें हम इनवर्स निकालते थे बाय यूजिंग द एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन. तो इसको डिलीट कर दिया गया है. प्रूफ ऑफ यूनिवर्स ऑफ द इनवर्स, इसमें 1 थ्योरम था. एवरी मैट्रिसेस हैव इनवर्स दैट इज यूनिक. अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स लेते हैं तो डेट विल बी यूनिक. इसमें 1 थ्योरम है, वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं.
तो इससे काफ़ी चेंज नहीं आया। आप ये कह सकते हैं ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा, रो एंड कॉलम ऑपरेशन दैट इज 3.4, ये भी खास बेनिफिट नहीं है। इसका 1-2 एग्जाम्पल है, यू कैन गिव नॉट ऑल्सो। नाउ डिटरमिनेंट, प्रूफ ऑफ डिटरमिनेंट, प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। आई थिंक मोस्टली प्रॉपर्टी डिलीट कर दी गई है, ओके। एंड कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इट मीन्स in chapter 4, by using property prove that, by using property prove that means 4.2 आपका डिलीट कर दिया गया है, प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट इसको डिलीट कर दिया गया है। एंड इसके साथ साथ कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी नो सॉल्यूशन, ये पार्ट कहाँ था, आपने 4.6 किया होगा इधर मैट्रिक्स कंटिन्यूड में, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द या सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो आई थिंक मैट्रिक्स मेथड तो आपका है जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, बट उसका एक इंक्रीजिंग पार्ट था कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस। जब किसी इक्वेशंस के सॉल्यूशन है, चाहे आपके पास यूनिक है या मैनी है, तब वो कंसिस्टेंस होता है, अदरवाइज इनकंसिस्टेंस। और नंबर ऑफ सॉल्यूशन है वो आपके कितने हैं, इनफाइनाइटली हैं, यूनिक है। तो इट मीन्स डिलीटेड पार्ट इन डिटरमिनेंट इज ओनली 4.2 एंड सेकंड पार्ट इज आपका मैट्रिक्स मेथड का क्वेश्चन सेम रहेगा, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। उसके बाद ये अपर केस आता है कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी एंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ये कब आता है, ये जब आएगा जब आपका डिटरमिनेंट क्या आ जाता है, नॉट इक्वल टू 0। इफ डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 देन हम क्या निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी, यानी मैट्रिक्स कंटिन्यूड का अपर पार्ट। तो ये काफी पहले भी बोर्ड में कभी क्वेश्चन नहीं आया इससे, हमेशा मैट्रिक्स मेथड से ही रहा है, ओके। हाँ, प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट से हमेशा क्वेश्चन आया है 4 मार्क्स में, अब ये डिलीट हो गया है। Now in calculus, continuity and differentiability से आपकी रोज और मीन वैल्यू थ्योरम को डिलीट कर दिया गया है। 2 एक्सरसाइज है, एनसीईआरटी में 1 है, तो इसको तो कंप्लीट को डिलीट कर दिया इन्होंने, और उसका ज्योमेट्रिकल एक्सप्रेशन भी डिलीट कर दिया है। एओडी से, एओडी में आपका 2 एक्सरसाइज रिड्यूस कर दिया है, खत्म कर दिया है। One is 6.1 and another is 6.4 from NCERT। रेट ऑफ चेंज जो हमने किया है, नाउ 6.4 अप्रोक्सीमेशन वो हमने नहीं किया, तो अप्रोक्सीमेशन एक इजी पार्ट था, ठीक है। सो बोथ हैव डिलीटेड 6.1 एंड 6.4। नाउ बात करें इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंटीग्रेशन है या उसका साथ में कोफिशिएंट है, ये आपकी 1 एक्सरसाइज बनता है, मे बी 7.5 और 4, फिर उसमें से इसको डिलीट कर दिया गया है। एक लिमिट ऑफ सम, ये भी कंप्लीट एक्सरसाइज। तो इंटीग्रेशन से एनसीईआरटी में आपकी 2 एक्सरसाइज डिलीट हो गई हैं, जिसमें मेन तो लिमिट ऑफ सम है, इसमें काफ़ी लेंथी क्वेश्चन बनता है 6 मार्क्स के लिए, तो सीबीएसई ने इसको भी डिलीट कर दिया है। और यहाँ ये डिलीट कर दिया, बट इसका काफ़ी यूज आता था, ठीक है। इसके कुछ क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से भी होते हैं, यू कैन से 7.2 भी डिपेंड करता है कुछ पार्ट। नाउ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन इन एनसीईआरटी, 2 एक्सरसाइज फ्रॉम AO, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन AOI। नाउ 1 हैव डिलीटेड, एरिया बिटवीन 2 कर्व मीन 8.2, 8.2 को डिलीट कर दिया गया है, इन विच एरिया बिटवीन 2 कर्व। Now in differential equation, जनरल इक्वेशन टू डिफरेंशियल कन्वर्ट करते थे हम, जनरल इक्वेशन को किससे बनाते थे, डिफरेंशियल में। तो 1 एक्सरसाइज यहाँ से डिलीट हो गया है, एंड द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q, ये भी डिलीट हो गया है। तो इट मीन्स आपका डिफरेंशियल से 2 एक्सरसाइज रिड्यूस हो गई हैं, यानी कुछ
कम कर दिया गया है, यहाँ आपका कम हुआ है सिलेबस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यूनिट इज now in unit 4 vectors and 3D. In unit 4 vector and 3D our chapter first is vector. तो वेक्टर में आपका डिलीट पार्ट हुआ है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, ओनली वन एक्सरसाइज, ओनली वन एक्सरसाइज, ये आपको एंड में गिवन होगा एनसीईआरटी के, इसको डिलीट कर दिया गया है। एंड वेन वेक्टर में से कुछ ज़्यादा डिलीट नहीं हुआ, आपके पास डॉट प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है, बट ओनली ट्रिपल्स। नाउ इन 3D एंगल बिटवीन टू लाइन, प्लेन, लाइन एंड ए प्लेन, ये कंसेप्ट है वन एक्सरसाइज का इन प्लेन, तो इसको डिलीट कर दिया गया है। एलिमेंट में इसमें 2 एक्सरसाइज क्रिएट है, तो इससे बड़ा कोई चेंज नहीं आएगा। एक सिंपल सा फार्मूला होता है cos थीटा इज b1 डॉट b2 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 मैग्नीट्यूड ऑफ b2। तो जब हम ये चैप्टर करेंगे तो ये डिस्कस कर ही लेते हैं साइड बाय साइड। ओके, कोई माइनर साइड चेंजेस मानिए आप, एंगल बिटवीन टू लाइन एंड प्लेन, ऑलवेज 1 मार्क्स क्वेश्चन अगर आता है तो इसमें पास्ट में आया है 1 और 2। क्लियर। नेक्स्ट इज एलपीपी। एलपीपी से आपका ओनली ये कह सकते हैं मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ एलपी प्रॉब्लम डिलीट हुआ है, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ एलपी डिलीट हुआ है, मींस आपको इसमें इक्वेशंस बनाना होता था। जैसे सपोज विटामिन वी हैव 2 फूड F1 F2 इन विच फूड F1 विटामिन ए कंटेन, विटामिन बी कंटेन, तो ऐसी प्रॉब्लम होती थी, उससे हम लीनियर इक्वेशन फॉर्मुलेट करते थे। तो अब डिलीट किया इन्होंने मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ एलपी प्रॉब्लम, तो इसको हम यही कह सकते हैं अब आपको डायरेक्ट इक्वेशंस मिलेंगी और आपको इक्वेशन से ग्राफ बनाना है। जैसे +1 में होता था चैप्टर 6, इक्वेशन से आप ग्राफ बनाते थे, देन सॉल्व करते हैं। तो सेम इन +2 और अनबाउंडेड, यू नो रीजन इज हैव 2 टाइप्स, वन इज बाउंडेड, ठीक है, सपोज इट इज अनबाउंडेड, तो ये अनबाउंडेड है। तो अनबाउंडेड के कॉन्सेप्ट में 1 इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते थे, तो उसको रिड्यूस कर दिया गया है। तो एलपीपी में आपको काफ़ी रिलैक्स मिला है, ओनली 1 एक्सरसाइज हेयर, ठीक है, रिमेनिंग एक्सरसाइज 1 जिसमें आपको इक्वेशन गिवन होगा और ग्राफ बनाना है। अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी में मीन और वेरिएंस 1 एक्सरसाइज है, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइनोमियल इज आल्सो 1 एक्सरसाइज। तो यू कैन से 2 एक्सरसाइज को डिलीट कर दिया गया है, मीन, वेरिएंस एंड पीडी। बस अब एनसीईआरटी में इसको 1 में काउंट किया गया है, पहले हम पीडी निकालते हैं और देन मीन एंड वेरिएंस, मीन एंड वेरिएंस। तो इट मीन्स यहाँ भी आपको रिलैक्स मिला है, ओनली बेस थ्योरम और टोटल थ्योरम्स 2 ही रह जाती हैं। क्लियर। तो सो डियर स्टूडेंट, इन दिस वे वी हैव डिस्कस्ड द डिलीटेड पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स या डिलीटेड कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स फॉर एग्जामिनेशन 2021। क्लियर। तो वी विल revise or do our coming syllabus by using the new curriculum way of the CBSE, and you can also mark at your book deleted syllabus, either you can cut it by red pen or as you so. Clear. Stay home, stay safe. Thank you.